Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In our previous video, we have covered some MySQL commands. This video is in continuation with the previous one. If you have not watched those videos, I will provide you the link of those videos in my description also. In this video, we are going to discuss these four main commands: alter, update, delete and drop. First we will start with alter command. See, alter command means to do the changes. Alter का मतलब ही क्या होता है? Changes करना. So with the help of alter command, we can add the column to an existing table. We can also delete a column from an existing table. We can even modify the definition of an existing column, and we can also change the name of an existing column. These are the four main points through which our alter command can be used. We will discuss all these points one by one. Now first of all, we will discuss the alter command to add a new column. अगर आपने अपनी टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है, so for that the syntax will be alter table, then you have to write the name of a table, then this add word will be used. Add column, column name, then its data type and its size. Constraint is optional, that we will discuss in our later videos. This column word here, ठीक है, this is optional. Your MySQL syntax or command can be executed with the help of this column word or without column. Means you can also write add column name, or you can also write add column, column name. Let's see the syntax now. One more thing about alter command. When you will execute this alter command, a new column will be inserted in your table, and the values of that new column by default will be null. As you know कि जब भी हम कोई column create करते हैं या row insert करते हैं, तो उसमें आपकी default value क्या होती है? Null. So the new column will be added with null values for all the rows. As you can see, this is my original table on which we are working upon. We will add one column in this table. ठीक है? The syntax will be alter table, table name is student, add, I want to add the column grade. So here I am writing the column name grade and then char 2 means उसकी data type का size. ठीक है? With the help of this command, so as you can see, a new column gets inserted in your table and with the values null. ठीक है, आप यहाँ पर कॉलम वर्ड भी लिख सकते हो, एड कॉलम ग्रेड, बोथ आर करेक्ट. नाउ अभी तो हमने एक ही कॉलम ऐड करा, वी कैन ऐड मल्टीपल कॉलम्स आल्सो विद अ सिंगल कमांड. टू ऐड सेवरल न्यू कॉलम्स separated by commas in a single command, you just have to write the name of multiple commas. This is the syntax for this: alter table, table name, add first column name, then its data type, comma second column name, then its data type. After this you have to write the brackets and then semicolon. There is a one difference with this. See these brackets after add, जो मैंने add कीवर्ड यूज किया, इसके बाद आपके brackets हैं. If you have to add more than one column, so then it is mandatory for you to add this brackets also. This means कि जो आप कॉलम सारे ऐड कर रहे हो आपने क्लब कर दिए और विद द हेल्प ऑफ ऐड वो आपके ऐड ऑन हो जाएंगे. ठीक है, द सिंटैक्स विल बी ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड ब्रैकेट्स, एड्रेस, इट्स डेटा टाइप, जेंडर, इट्स डेटा टाइप. तो अब तक हमने टोटल कितने कॉलम्स ऐड कर लिए? फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड जेंडर एंड एड्रेस. तो एज यू कैन सी यहाँ पर मेरा एड्रेस और जेंडर कॉलम इंसर्ट हो गया. Let's execute this practically now. We are working on employee database and the name of my table is EMP. ठीक है, this is my original table. Now I want to add
one column with name department. So what will be the syntax for that? Alter table, table name. What is the name of my table? EMP. Alter table, table name, add column, and the name of my column is department, and then here you have to write its data type and then its size. ठीक है, then press enter key. So it is showing query okay. So if I want to check which command will be used to display all the records, select star from employee table name. So as you can see जो department column है that is being inserted now और by default उसमें values क्या हैं? Null. Let's move further. Alter command drop column. Drop means delete करना. अगर मुझे कोई add करना है so for that we have to use alter command with add keyword. But drop column command is used if we want to delete an existing column from a table. कि जो column आपका table में already है, if you want to delete that, for this we are having alter command. Alter table, table name, drop column, column name. Here also again this column word is optional, with the column or without column. Both syntax will work in MySQL. So you see the syntax now. Now I want to delete the column address. Alter table, table name, drop column. You just have to write the name of column when you are going to delete the column. तो आपने सिर्फ क्या लिखना है उस कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेटा टाइप हमारी तब रिक्वायर्ड होगी व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द कॉलम. तो एज यू कैन सी जो यहाँ पर मेरा एड्रेस नेम से कॉलम था, इट्स डिलीटेड नाउ. ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली. लेट मी शो यू प्रैक्टिकली टू इंसर्ट मोर देन वन कॉलम ऑल्सो. ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ माई टेबल इज एम्प्लॉय, एड. अब ऐड के बाद मुझे क्या लगानी है? ब्रैकेट्स. इफ आई एम गोइंग टू ऐड मोर देन वन कॉलम, सो हियर सपोज आई एम एडिंग जेंडर. फॉर दैट वी आर हैविंग डेटा टाइप सपोज cat 2. लेट्स ऐड वन मोर कॉलम with name contact number. Here you can write integer or you can write varchar also if you want to specify the कंट्री कोड हो. जैसे +91 वो इंडिया का कोड हो गया, तो ऐसे अगर आपने कंट्री कोड भी लिखना है, सो फॉर दैट यू हैव टू राइट द varchar data type. So I am pressing the enter key now. तो it's inserted. So let me check the table. ठीक है, अब हम इसमें से कॉलम को क्या कर देंगे? डिलीट. Let's add this last column contact. So what will be my syntax? Alter table, table name, drop. Again the column word is optional. Let's do this without column. Then contact. ठीक है, as you can see हमारा with column और without column both cases में work करेगा. Let's check the table now. ठीक है, अब जो आपका लास्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट वाला कॉलम था दैट इज बीइंग डिलीटेड नाउ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कांसेप्ट. ऑल्टर कमांड एंड मॉडिफाई द डेटा टाइप और साइज. मींस जो आपके एग्जिस्टिंग कॉलम की डेटा टाइप है. कई बार क्या होता है, सपोज मैंने कॉलम लिया टू इंसर्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स और मैंने स्टार्टिंग में उसका डेटा टाइप का साइज ले लिया, लेट्स सपोज 7 कैरेक्टर्स. ठीक है, अब नाउ मैं आई हैव टू ऐड वन नेम which is having more than 8 characters. कि अब मुझे कोई एक नेम ऐड करना है अपने टेबल में, बट उसके नेम्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो मोर देन 8 हैं. अब हम उसको यूं तो कहेंगे नहीं अपना नेम स्मॉल करो, ठीक है, और ना ही हम दोबारा से टेबल क्रिएट करेंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द ऑल्टर कमांड विद मॉडिफाई कीवर्ड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माई स्टूडेंट टेबल. इफ यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, फॉर दैट वी आर हैविंग डिस्क्राइब कमांड. DESC to describe and then the name of the table. So it will display you the structure of the table. Structure में आपका क्या आ जाएगा? Field and उसकी data types. Roll number, int, name, date of birth, marks, stream, grade and gender. ठीक है, अब grade 1 जो मेरा कॉलम है उसकी data type क्या है? Char. और उसका size क्या है? 2. We will modify the size of this column. What will be the command for this?
alter table table name. The name of my table is student. Here you have to write the modify. ठीक है, ऐड करते टाइम हमने क्या लिखा था, ऐड, डिलीट कॉलम करते टाइम ड्रॉप, और डेटा टाइप में चेंजेस करने हो या साइज में चेंजेस करने हो किसी कॉलम के, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द मॉडिफाई कीवर्ड. ठीक है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम. उसके बाद आपने जिस कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना हो, हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट कॉलम, और उसके बाद आप उसकी जो न्यू डेफिनेशन है वो दोगे. अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कैर. बाय डिफॉल्ट कैर का साइज कितना होता है, 1 बाइट. तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर चेक करूंगी तो यहाँ पर ये देखो कैर 1. ठीक है, मैंने साइज नहीं दिया था, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1. लेट्स एग्जीक्यूट दिस आल्सो प्रैक्टिकली. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ माय EMP टेबल. डिस्क्राइब एंड देन टेबल नेम इज एम्प्लॉय. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माय टेबल. ठीक है, नाउ सपोज आई वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ ई नंबर की कर देते हैं. ठीक है, इंट, या फिर आप किसी की भी कर लो. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ माय टेबल इज EMP. ठीक है, इसे या तो जेंडर का ही हम चेंज कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, या फिर हम ई नंबर का हम चेंज कर सकते हैं, ई नेम का साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं. ऑल्टर टेबल टेबल नेम, एम्प्लॉय, मॉडिफाई. उसके बाद उस कॉलम का नेम जिसका हमने चेंज करना है. ठीक है, जेंडर का नहीं कर रहे, हमने अभी किया एग्जांपल के थ्रू. अब हम करते हैं ई नेम और उसकी न्यू डेटा टाइप वैर कैर, और इसका हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, साइज. सपोज मैंने लेना है 13, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर. तो जब हम इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर इसका साइज क्या आ गया, 13. दैट मीन्स जो मेरा एग्जिस्टिंग कॉलम है उसकी हमने डेटा टाइप का साइज क्या कर दिया, चेंज, with the help of alter command and this modify keyword. Now our next concept is change the name of a column. कि हमने कॉलम का नेम तो दिया, अब लेटर ऑन मेरे माइंड में आया कि मुझे इस कॉलम का नेम चेंज करना है, कि जो पहले था वो नहीं रखना है. उसके लिए आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, ऑल्टर टेबल, आफ्टर दैट द नेम ऑफ माय टेबल, चेंज कीवर्ड यूज होगा. ठीक है, चेंज ओल्ड कॉलम का नेम, न्यू कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप. अगर आपने चेंज करनी हो तो कर सकते हैं. ठीक है, सीधे एग्जांपल. अब जो मेरा कॉलम का नेम है ग्रेड कैर 1, और जो मैंने इसका ऑल्टर कमांड करने के बाद आया सी, ग्रेड 1 मेरा पहले वाले कॉलम का नेम है सी. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कॉलम का नेम कर दिया, ग्रेड, और उसके बाद उसकी डेटा टाइप. लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली. जो हमारा COM कमीशन वाला कॉलम है इसको चेंज करेंगे. ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ माय टेबल इज एम्प्लॉय, चेंज ओल्ड कॉलम नेम इज COM, मॉडिफाई करके क्या लिखना, सपोज कमीशन, आफ्टर दिस इट्स डेटा टाइप, सेमीकोलन, एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. तो जब अब मैं स्ट्रक्चर चेक करूंगी, नाउ सी द नेम ऑफ द कॉलम, इट इज शोइंग कमीशन. अगर आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी डिस्प्ले कराओगे तो अब मेरा ये कॉलम का नेम जो है वो परमानेंटली चेंज हो चुका है. नाउ माय नेक्स्ट कमांड इज अपडेट कमांड. नाउ सी, update command is used to update or change the existing values in a table. कि आपने जो रो इंसर्ट कर रखी है जो उसमें ऑलरेडी वैल्यूज हैं, to update those values or to change those values we have to use the update command. Some students are having confusion कि अगर हमने alter command से कॉलम ऐड कर दिया तो उसमें हम वैल्यूज कैसे इंसर्ट करेंगे. ठीक है, वो क्या बोलते हैं, यूजिंग इंसर्ट कमांड. बट इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द एंटायर रो. अब जब मैंने कॉलम इंसर्ट कर दिया उसमें नल वैल्यू तो आई गई, चाहे वो बाय डिफॉल्ट आई हो. सो टू अपडेट दोज वैल्यूज वी आर हैविंग अपडेट कमांड, एंड द सिंटेक्स फॉर अपडेट इज अपडेट, आफ्टर दिस द नेम ऑफ द टेबल, सेट कॉलम नेम, जिस कॉलम में आपने चेंजेस करने हो, इक्वल्स टू जो आपने अपडेटेड वैल्यू रखनी है, न्यू वैल्यू.
if the value you want to change having the data type char or varchar, then you have to write it in double quotes. Otherwise, if it is numeric, you can write it without quotes also. And where condition कि आपने किसके मार्क्स चेंज करने. सपोज आई वांट टू चेंज द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट विद रोल नंबर 5. सो माय कमांड विल बी अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 85 where roll number equals to 5. Now see, this is my original table. अगर मैं अपडेट कमांड लगा दूं विदाउट कंडीशन, कि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ठीक है, मैंने क्या करा, जो मेरा ये जेंडर कॉलम है, ठीक है, ध्यान से देखो, अभी इसमें सारी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, नल, और मैंने कमांड लगाई अपडेट टेबल नेम सेट जेंडर इक्वल्स टू एफ, कि मीन्स जेंडर में आपका वहां पर क्या आ जाए, एफ. तो अब क्या होगा, मैंने कोई कंडीशन तो दी नहीं, तो मेरा जो जेंडर वाला कॉलम है वो सभी वैल्यूज उसकी क्या आ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट एफ. आप कंडीशन के साथ भी कर सकते हो, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 50 वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5. नाउ सी, उसके जो रोल नंबर 5 के हमने मार्क्स कितने करे हैं, 50. तो एज यू कैन सी दिस रो, द हाईलाइटेड वन रोल नंबर 5 और उसके मार्क्स कितने हो गए, 50. नाउ नेक्स्ट की अब मैं वेयर में कोई कंडीशन लगाकर भी मार्क्स चेंज कर सकती हूँ या ग्रेड्स. अब जो मेरा ग्रेड का कॉलम था, सी इसमें मेरे पास क्या है, सारी नल वैल्यूज है. नाउ आई हैव अप्लाइड द कंडीशन अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल्स टू ए वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80. तो जहां जहां पर मेरे मार्क्स 80 से अबव हैं, वहां पर ग्रेड क्या आ गया, ए. नाउ आई वांट कि जो रिमेनिंग है वहां पर मैं ग्रेड बी फिल कर दूं. सो फॉर दैट माय सिंटेक्स विल बी अपडेट टेबल नेम सेट ग्रेड इक्वल्स टू बी वेयर ग्रेड इज नल. दैट मीन्स कि जहां जहां पर आपकी नल वैल्यूज हैं वहां पर आपका ग्रेड क्या हो जाएगा, बी. Let's execute this practically. As you can see in this highlighted column also, कि जो मेरे रिमेनिंग वैल्यूज हैं वहां पर आपका ग्रेड क्या हो गया बेटा, बी, वो चेंज हो गया. Let's execute this practically. This is my original table. जेंडर का चेंज करते हैं, ठीक है. अब देखो जो मेरे पास नेम्स हैं वो आपको चेक करना है मेजॉरिटी कहाँ है, या बाद में हम चेंज कर सकते हैं. अपडेट टेबल नेम सेट जेंडर इक्वल्स टू M. Now I am doing this without condition. तो क्या होगा मेरा, सबके सब जेंडर्स क्या हो जाएंगे, मेल. ठीक है, आप एक टाइम पर एक से ज्यादा कॉलम में वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो. लेट्स डू दिस. अपडेट जो आपका ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, ठीक है. अपडेट DOB इक्वल्स टू ईयर मंथ एंड देन डेट. ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, कोमा इसी का हम क्या करते हैं, कमीशन भी चेंज कर देते हैं या सैलरी कर देते हैं, ठीक है. सैलरी इक्वल्स टू 45,000 और यहाँ पर कंडीशन क्या देंगे, वेयर ई नंबर इक्वल्स टू 103. ठीक है, दोबारा कमांड देखो, अपडेट टेबल नेम आएगा बेटा यहाँ पर, अपडेट टेबल नेम, द नेम ऑफ माई टेबल इज एम्प्लॉय. अपडेट टेबल नेम सेट DOB. ठीक है, सिंटेक्स विल बी अपडेट टेबल नेम सेट, किस कॉलम में चेंज करना है, DOB इक्वल्स टू जो आपने न्यू वैल्यू देनी हो, कोमा सैलरी 45,000 वेयर ई नंबर इक्वल्स टू 103. तो जहां पर आपका ई नंबर 103 है वहां पर ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. ठीक है, एज इट इज शोइंग क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, दैट मीन्स एक रो में आपका क्या हुआ है, चेंज हुआ है. रोज मैच 1 एंड चेंज 1. लेट्स सी द टेबल नाउ. 103 उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई और उसकी सैलरी कितनी हो गई अब, 45,000. नाउ माय नेक्स्ट कमांड इज डिलीट कमांड. डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द रोज फ्रॉम अ टेबल. अगर आपने कंप्लीट रोज डिलीट करनी है, सो फॉर दैट वी आर हैविंग डिलीट कमांड एंड द सिंटेक्स फॉर दिस इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. ठीक है, वन important point regarding delete command. Using delete command we can only delete the rows or delete the values.
उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। अगर मुझे कंप्लीट टेबल डिलीट करनी है, फॉर दैट वी आर हैविंग ड्रॉप कमांड, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस कमांड, बट डिलीट कमांड विल डिलीट ओनली द रोज और वैल्यूज ऑफ अ टेबल। इसमें भी सेम है, अगर आप वेयर में कंडीशन नहीं लगाओगे तो आपकी कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाएगी, मींस उसकी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी बट स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। नाउ सी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 10। तो जहां पर आपका एज यू कैन सी रोल नंबर 10 था, वो रो आपकी अब क्या हो चुकी है, डिलीट। इफ वी यूज डिलीट कमांड विदाउट कंडीशन देन इट विल डिलीट ऑल द रोज। सारे रोज क्या हो जाएंगे, डिलीट, बट इट्स स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। इंटैक्ट मीन्स एज इट इज रहेगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस ऑल्सो प्रैक्टिकली। नाउ सपोज आई वांट टू डिलीट the employee number 104. So for that the syntax will be delete from table name where e number equals to 104. Query okay, one row affected. So as you can see 104 वाली रो क्या हो चुकी है, delete. I will show you without condition हम क्या करेंगे. I will not apply that condition on this table, otherwise all rows will get deleted. Let's create another table. क्रिएट टेबल सपोज डेमो, उसमें हम एक ही कॉलम ले लेते हैं नेम, varchar, 2 कॉलम्स ले लेते हैं बेटा, एक आर नंबर, इंट, कोमा, नेम, varchar, और उसका एक साइज ले लेते हैं 10। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें क्विकली हम वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। फॉर दैट द सिंटैक्स इज इंसर्ट इनटू table name values, I have to write this again, to table name values 1, comma, here you have to write the name. Next second row, then third, with the help of arrow keys you can get the previous commands also. ठीक है, only 4 rows we will insert just to show you the demo कि अगर मैं without where condition लगाऊं तो आपकी सारी rows कैसे डिलीट होंगी। अगर मैं पिछली वाली टेबल में करती तो आगे भी मुझे कमांड्स अप्लाई करनी है, तो वो सारी वैल्यूज मुझे दोबारा इंसर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ये 5 rows इंसर्ट हो गई। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब देखो, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना हो, डिस्क्राइब एंड देन द नेम ऑफ द टेबल, स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम इज डेमो। देखो, अगर मैं विद कंडीशन करूं कि वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 3, तो जिसका नंबर 3 है वो डिलीट हो गया। Now I am writing this without where condition. Delete from name of table. So as you can see 4 rows मेरी delete हो गई। तो जब आप टेबल को डिस्प्ले कराओगे empty set, that means वो टेबल तो है बट उसमें कोई भी वैल्यूज नहीं है। और आपको कैसे पता टेबल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? For that you can check the structure, describe demo, स्ट्रक्चर शो हो रहा है, that means टेबल क्रिएट हुई है। और यू कैन राइट द कमांड शो टेबल्स। हमने डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, एम्प्लॉय, तो उसमें आपकी कौन सी टेबल्स है, डेमो एंड ईएमपी। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट कमांड फॉर दिस वीडियो, दैट इज ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द एंटायर टेबल। अगर आपको टेबल के कंटेंट्स भी डिलीट करने हो, टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करना हो, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड में अगर आप सिंपल टेबल डिलीट कर रहे हो तो उसकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी एंड द सिंटैक्स विल बी ड्रॉप टेबल नेम ऑफ टेबल। तो हियर आई एम राइटिंग ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम क्या है बेटा, डेमो टेबल, क्वेरी ओके। तो अब जब मैं लिखूंगी डिस्क्राइब डेमो, अब टेबल तो है नहीं मेरे पास, तो ये मुझे क्या शो करेगा, एरर, क्योंकि टेबल मैंने क्या कर दी, डिलीट। अगर आप शो टेबल्स कमांड भी लिखोगे तो उसमें भी आपको वो डेमो वाली टेबल अब शो नहीं करेगा। रीजन बीइंग दैट विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप टेबल कमांड वी हैव डिलीटेड द
table also. उसका जो complete structure था, that will get deleted. I hope all these concepts are clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.